محمد جو دنیا میں تشریف لائے، اجالوں میں بدلے اندھیروں کے سائے، خدا سے تعلق کچھ اس طرح جوڑا، بتوں کی پرستش سے منہ اپنا موڑا، کہا جھوٹ سے اپنا دامن بچا لو، خدا سچ ہے بس اس کو اپنا بنا لو، خیالی بتوں کے خیالوں کو چھوڑو، بھلائی کی جانب ارادوں کو موڑو، محمد بڑھے دین و ایمان کو لے کر، پیام اخوت و قرآن لے کر، محمد جو دنیا میں تشریف لائے، اجالوں میں بدلے اندھیروں کے سائے، خدا سے تعلق کچھ اس طرح جوڑا، بتوں کی پرستش سے منہ اپنا موڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بھئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھ کر، سن کر، اور ہمارے بڑوں نے ہم پر احسان کیا کہ دیکھ کر ہماری یہ امت، ہمارے یہ بھائی بہن، سب ہمارے ساتھ میں رہنے والے دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو کیوں پڑھا جاتا ہے، کیوں لکھا جاتا ہے؟ یا ہمارے بزرگوں نے یہ انتظام کیا کہ دیکھ کر بھی اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم اپنائیں۔ بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے، تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جن کے بارے میں کتابیں لکھی گئی، جن کے بارے میں تعریفیں کی گئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا کی تعریفیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ لکھنے میں ختم ہو سکتی ہے، نہ سننے میں ختم ہو سکتی ہے، نہ دیکھنے میں ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم ان ماڈلسوں کو دیکھ کر ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنائیں، ہماری زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی سے جوڑیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم دیکھ کر بھی سمجھیں۔ اس لیے ان تمام ماڈلسوں کو دیکھیں، اور جو بچے اس کے سامنے ٹھہر کر جو اس کا پروگرام کر رہے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس ماڈل کا ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس واقعے سے جوڑ ہے، اس واقعے کو ہم کھڑ کر سمجھیں، اور ان بچوں کی ہمت افزائی کریں، اور ان کا ادب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہوئے یہاں سے گزریں۔ اس لیے تمام ساتھی درود شریف پڑھتے ہوئے اس کے بعد ہے کہ کپڑے کو دیکھتے ہوئے چلیں کہ یہ جو کپڑا کعبۃ اللہ کا غلاف اوریجنل غلاف ہے، اور یہ جو ہرا کپڑا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے بازو میں جو ایک دیوار ہے اس سے لگا ہوا یہ کپڑا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلے گا۔ وہ صحیح ہے، میں تمہیں بھیجا برکاتہ۔ خوش آمدید محترم مہمانان، میرا نام ہے عالیہ نگاری، میں ششم جماعت کی طالبہ علم ہوں۔ میرے مضمون کا نام ہے طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ کا ذاتہ۔ میں امجد چیریٹیبل ٹرسٹ کی طالبہ علم ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1950 سال پہلے مکہ مکرمہ کا ذاتہ۔ یہ اس کا ماڈل ہے۔ یہ دنیا سے الگ تھلگ پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ویلی تھی۔ اس وقت اس وادی میں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ یہاں سے کوئی جانور گزرتا تھا، اور نہ ہی کوئی درخت تھا، اور نہ ہی پانی کے قطرے کا نام و نشان تھا۔ یہاں تک کہ طوفان سے کعبۃ اللہ کے نشانات بھی مٹ گئے تھے۔ لیکن عرب کے آس پاس کے قبائل اس بات کو جانتے تھے کہ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے پر اللہ کا گھر تھا جہاں عبادت کی جاتی تھی۔ اس بے جان اور پتھریلی وادی میں انسانی آبادی کی شروعات اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر واپس ملک شام فلسطین چلے گئے۔ بیوی اور معصوم بچے کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے اس توقع انہوں نے جو دعا کی تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی ہے:
اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جو بے جان ہے اور کھیتی کے قابل نہیں ہے. میں نے یہاں ان کو اس لیے ٹھہرایا تاکہ نماز قائم کرے. اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ تیرا شکر کرنے والے بن جائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدین محترم مہمانان. میرا نام تسلیم کھٹا پورا ہے. میں نہوم جماعت کی طالبہ ہوں. میں ایم جی چیریٹیبل ٹرسٹ میں نہوم جماعت میں پڑھتی ہوں. میرا مضمون کا نام ہے طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ کا سطح. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1950 سال پہلے مکہ مکرمہ کا سطح یہ اس کا ماڈل ہے. یہ دنیا سے الگ الگ پہاڑیوں کے درمیان تھا. اس وقت اس وادی میں نہ کوئی انسان رہتا تھا اور نہ ہی کوئی جانور گزرتا تھا. یہاں تک کہ طوفان نوح سے کعبۃ اللہ کی نشانات بھی مٹ گئی تھی. لیکن عرب کے آس پاس کے قبائل اس بات کو جانتے تھے کہ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ٹھیلے پر اللہ کا گھر تھا جہاں عبادت کی جاتی تھی. اس بے جان اور پتھریلی وادی میں انسانی آبادی کی شروعات اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر واپس ملک شام فلسطین چلے گئے. بیوی اور معصوم بچے کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے اس وقت انہوں نے جو دعا کی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے. میں نے یہاں ان کو اس لیے ٹھہرایا تاکہ وہ نماز قائم کرے. اے اللہ، تو لوگ ان کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کرنے والے بن جائے. جزاک اللہ خیر. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طیبہ، میں پنجم جماعت کی طالب علم ہوں. میرا عنوان مکہ مکرمہ، عمر بن عامر الخزاعی اور قریشوں کے دور میں. اس ماڈل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا. یہاں پر بت پرستی کیسے آئی اور کفر و شرک اور بتوں کی عبادت کیسے شروع ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ 300 سال تک مکہ پر حکومت اور کعبۃ اللہ کی خدمت کا کام انجام دیتے رہے اور یہاں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی رہی. چنانچہ مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی خدمت کا یہ سلسلہ قبیلہ قریشی سے چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے رومانہ. میں نہوم جماعت کی طالب علم ہوں. میرا ٹیوشن کا نام ہے ایم جی چیریٹیبل ٹرسٹ میں پڑھتی ہوں. میرا عنوان ہے مکہ مکرمہ، عمر بن عامر الخزاعی اور قریشوں کے دور میں. اس ماڈل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا. یہاں پر بت پرستی کیسے آئی اور کفر و شرک اور بتوں کی عبادت کیسے شروع ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے بعد قبیلہ جرم کے لوگ 300 سال تک مکہ پر حکومت اور کعبۃ اللہ کا خدمت کا فریضہ ان سے چھین لیا. قبیلہ خزاع کا سردار عمر ابن عامر الخزاع تھا جس نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے اطراف بتوں کو لا کر نصب کر دیا. یہی ہے وہ پہلا شخص. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین و حق کو بدل کر لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دی. اسی طرح یہی بتوں کی عبادت شروع ہوئی. پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے تقریباً 200 سال پہلے قصی بن کلاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مکہ آئے اور مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لی اور ساتھ ہی انہوں نے تمام قریش کے قبیلے کی جو آس پاس کی وادیاں اور گھاٹیاں میں زندگی گزار رہے تھے کعبۃ اللہ کے اطراف لا کر آباد کیا. قصی بن کلاب پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ کے اطراف طواف کی حد مقرر کی اور لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے گھروں کو عزت کے باہر تعمیر کرو. لوگوں نے اسی حکم کے مطابق اپنے گھروں کو بنا لیا. چنانچہ مکہ کی حکومت اور خانہ کعبہ کی یہ سلسلہ قبیلے قریش ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں تشریف لائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ دیکھ رہے غزوات کے بارے میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی 63 سال کی عمر کے اندر جو ہے اپنے غزوات کیے سے یعنی اپنی 63 سال کی عمر کے اندر 27 غزوات کیے ہیں. پہلا یہ غزوہ ویدان، غزوہ بدر، غزوہ بوات اور غزوۃ العشر. غزوہ بدر جیسے غزوہ تبوک ہو گیا، غزوۃ الحدیبیہ ہو گیا، یہ سارے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سارے جنگوں میں شریک تھے. اسلام میں تو کیا ہے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں لیکن سارے غزوات میں کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام شریک تھے. اور جو ہے آپ کو ہریا سرکل دکھ رہا ہے یہاں پر جیسے دومت الجندل ہو گیا، جیسے غزوہ تبوک ہو گیا، جیسے ایک غزوۃ البوات ہو گیا، سارے غزوات سارے جنگوں میں ہمارے نبی علیہ السلام شریک تھے. اور جو ہے یہ ہریا سرکل دکھ رہا ہے آپ کو، اور جو یہ ہریا سرکل دکھ رہا ہے آپ کو یہ جنگیں کیا ہے پہلی مرتبہ فتح ہوئے سو ہے. اور یہ جنگ خیبر ہو گیا، جنگ بدر ہو گیا، جنگ حنین ہو گیا، کسی وجہ سے کیا ہے یہ جنگیں کیا ہے ناکام ہوئی.
और जो आपको हरा सर्कल दिख रहा है दोमतुल जंदल और गज़वे तबूक हो गया, ये सारे जंगे क्या है कामयाबी हुए से, जंगे क्या है तबूक में सारे जंगे क्या है कामयाबी हुए से, फतह हुए से। इतना तो क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सारे जंगों में शरीक हुए, और जिस जंग में गज़वे आ गया नाम वो क्या है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस जंग में शरीक थे। ये जो मस्जिद दिख रहे हैं मस्जिद नबी, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने का क्या है मस्जिद नबी है। अंदर आप गए तो आप मॉडल दिखता है इंशाल्लाह। ये मस्जिद नबी के बाजू में जो है 10 नंबर वाइज सीरियल नंबर घर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ऊपर जो आपको नाम दिख रहा है नामा दिख रहे हैं नंबर वाइज, जैसे हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ुबैरिया, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है बीवी थी, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। इन्होंने क्या है मस्जिद नबी के बाजू में क्या है रुमा थे 10 नंबर ऐसा, उनके क्या है नाम ऊपर भी लिखा गया इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अब्दुल्ला का निकाह शाम की तरफ तिजारती सफर और मदीने में इनके वफात का वाक़या पेश किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने इनको 10 बेटे दिए तो 10वें बेटे को अल्लाह की रजा व खुशी के लिए काबा के पास ज़ुबह कर देंगे। अब्दुल मुत्तलिब को मन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला ने 10 बेटे दिए, लेकिन 10वें बेटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे। जब अब्दुल्ला 25 साल के हुए तो निहायत शरीफ, नेक और पाकबाज खातून हज़रत अमीना से आपका निकाह हुआ। निकाह के बाद सिर्फ 3 महीने गुजरे थे कि अब्दुल्ला को मुल्क शाम की तरफ तिजारती सफर पर जाना पड़ा और वापस मदीना ही में रुक गए। मदीना ही में सख्त बीमार हो गए, जिसकी वजह से वापस मक्का न आ सके और वहीं इनकी वफात हो गई। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से हर एक अपने यहाँ पर ये करते हैं। इस मॉडल में आपको हाथियों की फौज नजर आ रही है जो खाने काबा को गिराने के लिए आए थे, तो अल्लाह ताला ने इन्हें कैसे हिलाक किया। अब्राहा नामी मुल्क यमन की ईसाई गवर्नर ने सना में एक बहुत खूबसूरत और बड़ा गिरजाघर तामीर किया जिसका नाम खलीस रखा, और उसने सारे अरब में ऐलान कराया कि तमाम अरब के लोग अब काबा अल्लाह के बजाय इस गिरजाघर में हर साल इबादत के लिए जमा होंगे। यही सिलसिला चलता रहा कि अल्लाह ताला ने अबाबिल परिंदों की फौज को भेजा जिनके चंच में 1 कंकरी और पंजों में 2 कंकरियां आते। जब अबाबिल परिंदों ने अब्राहा की फौज पर कंकरियां बरसाई तो सारी की सारी फौज हिलाक हो गए। अब्राहा के सारे फौजी हाथियों पर सवार होकर आए थे, इसलिए इस साल को अमुल फिल कहा जाता है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मॉडल में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़ये का जिक्र कर रहे हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत वाक़या फिल के 1 साल के बाद फिर के दिन 12 रबीउल अव्वल हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक पाक और साफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना कहती है कि पैदाइश का वक्त और उससे पहले भी इन्हें किसी किस्म की तकलीफ और दर्द महसूस नहीं हुआ। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर हुई कि पोते की विलादत हुई तो वो बड़ी खुशी के आलम में आए और बच्चे को हाथ मिला और काबतुल्लाह के पास ले गए। वहाँ आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वालिदा ने अहमद रखा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद रखा। आपके दादा आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। उन्होंने मक्का के दस्तूर के मुताबिक परवरिश करने वाली दाइयों को मुकर्रर किया था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस मॉडल के अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल कैसे हुआ। बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा हज़रत आमीना के साथ अपने वालिद अब्दुल्ला के घर में रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई तो वालिदा ने पूछा अपने यतीम बच्चे को यज़रब यानी मदीने में मौजूद नानी और दूसरे ननियाली रिश्तेदारों से मुलाकात करे। इस घर से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना पहुंचे। मदीने में चंद दिन रहने के बाद मक्का मुकर्रमा के लिए वापस हुए तो रास्ते में मक्का और मदीने के दरमियान मुकाम अबवा पर सख्त बीमार हो गई, मगर अफसोस कि उन्हें बीमारी से शिफा ना मिली। देखते ही देखते इस मासूम 6 साल यतीम बच्चे की आंखों के सामने माँ का इंतकाल हो गया और इन्हें अबवाही में उनको दफन कर दिया गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस मॉडल का नाम है दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती। इस मॉडल के जरिए हम बताना चाहते हैं जब हजरत आमिना का इंतकाल हो गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके
जो दादा अब्दुल मुत्तलिब करते रहे। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, जिसकी वजह उनके लिए काबतुल्लाह के पास एक मुसन्नत बिछाई जाती थी, जिस पर अब्दुल मुत्तलिब के अलावा कोई नहीं बैठ सकता था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दादा के पास आते तो आपको दादा की तरफ से इस मुसन्नत पर बैठने की इजाजत दी गई थी। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते के मुताल्लिक कहा करते थे, एक दिन आया गया कि मेरे पोते की दुनिया में बड़ी शान होगी, और साथ साथ मोहब्बत और शफकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर हाथ फहराया करते, जिससे आपकी खुशी महसूस होती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। दादा के इंतकाल के बाद आपकी चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश व कफालत की जिम्मेदारी ले ली। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीन मोहतरम मेहमानान, इस मॉडल से हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क शाम तिजारत और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह का वाक़िया बताना चाहते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरैश मक्का की इज़्ज़तदार, मालदार और ताजिर खातून थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और बुलंद अखलाक की खबरें सुनी तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि इनका माल मुल्क शाम तिजारत के लिए ले जाइए। साथ में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अपना मैसरा नामी गुलाम भी भेजा और कहा कि वो दूसरों के मुकाबले में नफा भी दुगना देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल कर लिया और मैसरा को लेकर तिजारती सामान के साथ मुल्क शाम रवाना हो गए। दौरानी सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राही ईसाई आलिम के इबादत खाने के करीब एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मॉडल गारे हीरा का है। देखिए, एक गार है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई थी। नबूवत से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादा वक्त अकेले रहकर इबादत और जिक्र व फिक्र में इसी गार में गुजारा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जरूरत के लिए बाहर तशरीफ ले जाते तो दरख्त और पत्थर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। रमजान का महीना चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर में अल्लाह की याद में मसरूफ थे कि अचानक जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए और कहा कि इकरा पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अना भिखारी में पड़ा हुआ नहीं हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को अपने सीने से मिलाकर इस जोर से दबोचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ महसूस हुई। इसके बाद इन्होंने फिर कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये कुरान मजीद की पहली आयत थे जो गारे हीरा में नाज़िल हुई। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे उन्वान का नाम है दावत इस्लाम का पहला सेंटर दार अरकम। ये दार अरकम है जो इस्लाम का सबसे पहला मरकज है, जहाँ सहाबा इस्लाम कबूल करते और दीन सीखते थे। सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उम्मत की अजीम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला थी और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला थे। कबूल इस्लाम के वक्त उनकी उम्र 10 साल की थी और आजाद करदा हुआ गुलामों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के दोस्तों में सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो आप सल्लम के खास दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला थे। कबूल इस्लाम के बाद नमाज का तोहफा मिला तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। हज़रत अबू मुत्तलिब ने इन दोनों को नमाज पढ़ते हुए देखा तो पूछा कि भतीजे ये कौन सा दिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सच्चा ये दिन हक है, ये दिन इब्राहिमी है और यही सच्चा दिन है। और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना रसूल बनाकर बंदों की तरफ भेजा है और मेरे चाचा जान मैं भी आपको इस दिन का हक कबूल करने की दावत देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये काबतुल्लाह के मॉडल है। अल्लाह के हुक्म पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके इस काबतुल्लाह को बनाया था। इसके 2 दरवाजे थे, एक दरवाज़ा सामने से दाखिल होने के लिए, दूसरा बाहर जाने के लिए। इसका कोई छत नहीं था। चंद दिनों के बाद जोर सैलाब आने के वजह से ये काबतुल्लाह टूट गया। तो उसके बाद कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फिर से इस काबतुल्लाह को तामीर किया और उनके पास ज़्यादा हलाल पैसे ना रहने के वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की काबतुल्लाह की तरह नहीं बनाए। तो इन्होंने इसको 10 बाय 10 मीटर से बनाया और इसके साथ एक 5 मीटर का हकीम को बनाया। तो चंद दिनों के बाद ये भी कमज़ोर होकर टूट गया। तो फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर से इसको तामीर किया और इस हकीम को उन्होंने अपने काबतुल्लाह के साथ मिला लिया। ये काबतुल्लाह मिलाने का वजह यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के महफिल में पेश किया था कि उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस तरह से काबतुल्लाह था उनको वो देखने था। तो उस बात को जहन में रखते हुए उन्होंने उस तरह से काबतुल्लाह को बनाया था।
तो इसी ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। तो उन्होंने फिर से कुरैश यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस तरह से था उसी तरह से काबतुल्लाह को बनाया और फिर उस पर गिला चढ़ाई। और इस गिला को चंद दिनों के बाद खिलाफत उस्मान ने इसको इस पे सोने की परत को चढ़ाई और इस फिल वक्त में जो तुम्हें काबतुल्लाह देख सकते हैं इसी तरह से बना हुआ है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं एमजी ट्यूशन की तालिबे इल्म हूँ और मेरा उन्वान है हबशा की तरफ पहली और दूसरी हिजरत है। इस मॉडल में हबशा की तरफ मुसलमानों की हिजरत की तारीख पेश की गई है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि काफिर इस्लाम लाने वाले को इस कदर तकलीफ दे रहे हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। तभी अबू जहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तपती हुई रेत पर लिटा कर इन सीने पर पत्थर रख देता था और इसी तरह हजरत आमिर बिन फुहैरा, ज़मीरा, नादिया और इनकी बेटी पर जुल्म के पहाड़ आए जाते थे। ये किसी न किसी का गुलाम या बांध दिया थी। इसी तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रस्सियों से बांधा जाता था। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना मारा गया कि वो मौत के करीब पहुंच गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब तकलीफों को देखा तो सहाबा से कहा कि आप लोग यहाँ हिजरत करके आए हैं, इन्हें वापस किया जाए। और नबुवत के 6 साल मक्का के काफिरों ने उमर बिन आस के साथ एक जमात हफ्ता भेज की और कहा कि वो लोग सही और सच्चे दिन पर कायम है। मक्का से आए हुए काफिर नाकाम और दलील होकर वापिस हो गए। हबशा का वादा छन्नी शाशिर से इन सब का बड़ा ख्याल का था। सबको अमल और सुकून तक रखा, कोई तकलीफ पहुंचने न दी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा उन्वान बनु हाशिम का बाइकॉट। ये कि बनु हाशिम के साथ तमाम मुसलमानों का मक्के के काफिरों ने क्यों और कैसे बाइकॉट किया, ये इसका मॉडल है। जब मक्के के काफिरों ने देखा कि एक तरफ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हबशा चले गई और वहाँ नामन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और दूसरी तरफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला जैसे मक्के के बहादुर और ताकतवर और बादशाह लोगों ने इस्लाम को लिया और दूसरे कबीलों में भी इस्लाम तेजी से फैलता जा रहा है। तो काफिरों ने यह तय किया कि बनु हाशिम को सोशल बाइकॉट किया जाए। बनु हाशिम कुरैश सबसे इज्जतदार घराना था जिसमें अब्दुल मुत्तलिब का घराना था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इस बाइकॉट में यह लिखा गया था कि बनु हाशिम और दूसरे मुसलमानों से न कोई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तौइफ के सफर का मॉडल है। चाचा अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इंतकाल के बाद मक्का के काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताने लगे और इस्लाम की दावत में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करना शुरू कर दी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि तौइफ जाकर इस्लाम की दावत दी जाए। कबीला बनु सकीफ जो तौइफ का सबसे इज्जतदार कबीला था, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ के अहबाश और शरीर लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते और चीखते चिल्लाते। बदबख्तों इतने पत्थर मारे गए जिसमें मुबारक को खून खून कर दिया। वहाँ कुछ देर आराम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस तशरीफ ले गए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह मेराज का मॉडल है। जब मक्का की काफिरों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और ताइफ में मायूस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटना पड़ा था, इसके अलावा जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे हाल में अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसल्ली के तौर पर सातों आसमान पर बुलाकर अपना दीदार करना चाहा और इनामत से नवाजना चाहा। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अदब के साथ जवाब कर फरमाया, अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ताला ने मुलाकात के लिए आसमान पर बुलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्रह नामी सवारी पर बिठाया, फिर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए और वहाँ बैतुल मुकद्दस सैर कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल है तो देखा कि हजरत आदम इस्लाम से हजरत ईसा इस्लाम तक तमाम अंबिया मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तमाम नबियों के इमाम बन गए और सबको 2 रकात नमाज पढ़ाई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे और हर आसमान पर मुलाकात मुख्तलिफ अंबिया से होती रही। सिदरतुल मुंतहा पहुंचने के बाद आपको बैतुल मामूर को बुलंद किया गया जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते तो दोबारा लौट कर नहीं आते। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दाखिल किया गया जिसमें मोती की गुंबद थे। फिर अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचाया गया जहां अल्लाह ताला से इतना करीब है कि 1 कमर या 2 कमर का फासला रह गया था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازیں تحفے میں عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کم کرنے کی درخواست کرتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو 5 نمازیں عطا فرمائی, جس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہوگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو مکہ کے لوگوں کو معراج کے سفر کے تفصیلات بتائے تو مکہ کے لوگ اس کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے. پھر سارے کافر مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور معراج کی یہ خبریں سنائی تو انہوں نے سمجھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں گے, لیکن جیسے ہی آپ نے سنا اس کی فوراً تصدیق کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق کا لقب ملا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید محترم مہمانات. میرا نام خنسا ٹکر ہے, میں ششم جماعت کی طلبہ ہوں. میرا ماڈل کا نام ہے قبۃ الصخرہ مسجد اقصی. یہ قبۃ الصخرہ ہے, یہ مسجد قبلی ہے, یہ مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. یہ شب در کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ قبۃ الصخرہ اور مسجد قبلی کو مسجد اقصی سمجھتے ہیں. ہمارے اس ماڈل سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ قبۃ الصخرہ مسجد اقصی 2 الگ الگ چیز حرم شریف میں واقع ہے. اس دیوار کو دیکھو, اس کو دیوار گریحت کہا جاتا ہے. یہاں پر یہودی آ کر چمٹ کر روتے ہیں. مسلمانوں کو یہاں اس دیوار کو دیوار براق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو ہی مانا تھا. شکریہ. آپ کو یہ سمجھ میں آگا جو بولے بہن ہمارے کہ یہ ہمارے سامنے جب بھی بولتی مسجد اقصی کر کو ہمیں یہ سمجھ جاتی, جب بھی بیت المقدس بولتی ہمیں یہ سمجھ جاتی. اصل بیت المقدس یہ نہیں, اصل مسجد اقصی یہ نہیں. مسجد اقصی اور بیت المقدس آکو یہ اس کی فضیلت کیا معلوم آپ کو. جو کوئی بندہ یہ مسجد میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھ لیتا, اللہ رب العزت اسے بھی 25,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا. فلسطین اور غزہ میں جو بھی یہ وار چل رہی ہے صرف اور صرف یہ مسجد کو بچانے کے واسطے, دوسرا کون سا بھی معاملہ ان کا نہیں ہے, صرف اور صرف یہ مسجد کو بچانے کے واسطے. یہ مسجد کے بچانے کے واسطے اپنے بچے بھی کھو ڈال رہی, اپنے خون کو بھی بہا ڈال رہی, اپنے خاندان کو بھی مٹا ڈال رہی, صرف اور مسجد کو بچانے کے واسطے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اقبا کی پہلی اور دوسری بیعت کا ماڈل ہے. ہر سال عرب کے لوگ حج کے نام سے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے. جہاں کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اس کو انگریزی میں ٹینٹ کہتے ہیں اور عربی میں ٹیلا کہتے ہیں. یہ مدینہ جانے کا راستہ ہے, یہ حج کا راستہ ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید محترم مہمانات. آج کا میرا عنوان ہے کہ مدینے کی ہجرت کے وقت غار سور میں کیا. یہ غار سور کا ماڈل ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی ہجرت کے وقت قیام فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان سے باحفاظت نکل کر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے اور انہیں ہجرت کی خوشخبری سنائی. یہ خبر سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اس سفر کے لیے اونٹنیاں تیار کر رکھی ہے اور راستہ دکھانے کے لیے راہبر کو بھی کرائے پر لیا ہے جس کا نام عبداللہ بن اریقت ہے. رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار سور کی طرف رخ کیے اور اب گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ تم دن میں مکے کے غافروں کی باتوں کو سنو اور رات میں ہمیں آ کر اس کی خبر دینا. اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم مکے کے غافروں کی باتوں کو سنو. تم مکے کی پہاڑیوں میں بکریوں کو چراؤ اور شام کو ہمارے پاس لاؤ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بکریوں کا دودھ نوش فرمائیں. جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں موجودہ نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہنگامہ برپا کر دیا اور مکے میں اعلان کروایا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. انعام کے لالچ میں مکے کے لالچی کافر ہر جگہ آپ دونوں کو تلاش کرنے لگے. ایک دن سراقہ بن مالک جو مکہ کا مشہور سسوار تھا اور دوسرا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار تک پہنچ گیا. قریب تھا آپ دونوں کو دیکھ لیتا, لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار سور کی ڈھانی پر مکڑی نے جالا بنا دیا تھا اور اس کے قریب کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے, جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ غار کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص مدد تھی.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला 3 दिन के बाद गार से निकलकर मदीने की हिजरत का सफर शुरू कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमान। आज मेरा उन्वान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा का तारुफ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है, इसका नाम कस्वा है। कस्वा अरब की मशहूर कबीला मज़ारिब बनी काशिर की चरागाह में पैदा हुई। कस्वा 11 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 1 साल बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। यहाँ देखिए, ये खजूर का बगीचा है और ये कस्वा का चरने का जगह है और ये जन्नतुल बकी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे उन्वान का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा का वाक़िया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है, इसका नाम कस्वा है। कस्वा का रंग सफेद और काले के दरमियान सुर्खी माइल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा को प्यार से दूसरे नामों से पुकारते थे, जद्दा, कस्बा, असबा वगैरह। ये बहुत तेज रफ्तार की ऊँटनी है। ये हमेशा बकी के करीब चिरागाह में रहा करती थी। ये 11 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात का सदमा कस्वा को बहुत ज्यादा था। इसने खाना पानी भी छोड़ दिया। मुसलसल इसकी आंखों से आंसू जारी रहा करते थे। सहाबा इकराम ने इस पर तरस खाते हुए इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद इस पर कोई भी सवार ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के 1 साल बाद यह भी दुनिया से रुखसत हो गई। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अतीका मरियम बोदले खान, मैं एमजी चैरिटेबल ट्रस्ट के 10th क्लास में पढ़ती हूँ। ये हिजरत मदीने के रास्ते और इसके अहम मुकामात का मॉडल है। आप यहाँ इस रास्ते को देखिए, ये उस वक्त का मरकजी रास्ता कहलाता था। इसी रास्ते से तिजारती काफिले मुल्क शाम जाया करते थे और मदीना जाने के लिए भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह से इस रास्ते को तिजारती रास्ता या मुसाफिरों का रास्ता, ट्रैवलिंग रूट कहते थे। यहाँ बाएं तरफ देखिए, ये तिजारती रास्ता है। इधर दाएं तरफ हिजरत मुसाफिरों गुजरने का रास्ता है। ये वो जगह है जहाँ सुराका बिन मालिक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने की कोशिश की थी। शुक्रिया। आगे आ जाओ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है नूरुल्लाह। आज का मेरा मॉडल है उम्मे माबद का वाक़िया। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना हिजरत कर रहे थे तो इसी रास्ते उम्मे माबद का ख़ीमा मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कीमे की तरफ तशरीफ ले गए। लंबी सफर की थकान थी और भूख भी लगी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में माबद से कहा कि आपके यहाँ खाने पीने की कोई चीज मिल सकती है। मैं माबद ने कहा कि मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय इस बकरी के, ये बकरी भी कमजोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इजाजत दो मैं इस बकरी को दूध देने के लायक बना सकता हूँ। और साथ ही इस बात का अफसोस करती रही कि आज इत्तिफाकन घर में कोई खाने पीने की चीज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बकरी खीमे के कोने में खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बकरी के मुताल्लिक पूछा तो उम्मे माबद ने कहा, ये तो कमजोर बकरी है, चारा न खाने की वजह से इसका दूध भी सूख गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, उम्मे माबद के इसी बकरी में बरकत अता फरमा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इसके थन पर हाथ रखा और दूध देना शुरू किया। सबको पेट भर कर पिलाया। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पिया और एक बर्तन में दूध भरकर उम्मे माबद को दिया। उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा देखकर हैरान और परेशान थी, मगर इस वक्त मालूम नहीं था ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साथियों के साथ मदीने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद उम्मे माबद के शौहर आए तो देखा कि एक बड़ा बर्तन दूध से भरा हुआ है, तो हैरान से पूछा, उम्मे माबद घर में तो कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आया है। उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध धोने का मौजिज़ा बयान किया। शौहर ने पूछा तो उम्मे माबद थोड़ा इस बाबरकत हस्ती का उलिया शक्ल और सूरत तो बयान करो। उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे के बेहतरीन अल्फाज में तस्वीर कशी थी। ये सुनकर शौहर कहा कि खुदा की कसम ये तो वही हस्ती है जिसको कुफ्फार मक्का तलाश कर रहे हैं। इनको लाने पर 100 दिनार में देने का ऐलान किया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सुराका बिन मालिक का मॉडल है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के वक्त बहुत से यादगार वाक़यात और मौजिज़ात पेश आए। इनमें एक दिलचस्प वाक़या सुराका बिन मालिक अल-जअशम का है। ये मॉडल इसी वाक़ये की तफसील है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के बदौलत मक्का के जालिम काफिरों से बचकर निकल गए तो मक्का के काफिरों को इनकी 1000 कोशिशों के बावजूद इन्हें
नाकामी नजर आई, जिसकी वजह से इन्होंने आम ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। एक खबर सुनते ही मक्का के लालची काफिर हर तरफ दौड़ पड़े। इनमें एक मशहूर शाह सवार सुराका बिन मालिक भी थे। सुराका को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि सुराका सिर्फ 100 ऊंट के लालच में दौड़ रहे थे। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के निशानात तलाश करते हुए देख लिया। सुराका घोड़े पर सवार थे। इन्होंने अपना नेजा निकाला और फेंकना चाहा कि अचानक घोड़े के पैर जमीन में धंस गए। दोबारा नेजा निकाला और फेंकना चाहा कि फिर से घोड़े के पैर जमीन में धंस गए। तीसरी बार भी लालच के जोश में आकर घोड़े को तेजी से पीछे लिया और पहले से ज्यादा जोर लगाकर घोड़ा बढ़ाया। इस मर्तबा घोड़े के पैर ज्यादा धंस गए और वो जमीन पर गिर पड़े। तभी यकीन हो गया कि खुदा की कसम ये अल्लाह के सच्चे नबी है, इनसे अल्लाह ताला की बड़ी मदद और नुसरत है। तो पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद मुझे बचाए। आप सल्लम ने फरमाया, हमारी इस मुलाकात और सफर की बातों को राज में रखना, किसी से जिक्र ना करना। तो आप सल्लम ने फरमाया, सुराका ने वादा किया, दरख्वास्त की कि आए मोहम्मद मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर आपकी हुकूमत होगी। इस वक्त के लिए आप मुझे एक अमान का सर्टिफिकेट लिख कर दे। आप सल्लम ने इस वक्त अमान का सर्टिफिकेट पेश किया और 8 साल बाद जब मक्का फतह हुआ तो सारे काफिर कैदी बनकर आपके सामने खड़े थे। सुराका भी नहीं में थे। सुराका ने इस वक्त अमान का सर्टिफिकेट पेश किया और कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी में सुराका को बुलाया और सुराका ताज और कंगन पहनाकर कहा, आप सल्लम की पेशन गोई पूरी कर दी, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मदीने की पहली बस्ती कुबा का मॉडल है। मदीने के अंसारी सहाबा अल्लाह के नबी से अपनी औलाद और अपनी जान उनसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। इनमें से अक्सर वो लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा भी न था। उन्हें ये खबर मिल गई थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने के लिए निकल चुके हैं। सख्त गर्मी का जमाना था, मगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत ऐसी थी कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, मर्द, औरतें भी बस्ती के बाहर आकर शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते। उन्हें गर्म हवाओं का कोई एहसास न होता था। एक दिन मामूल के मुताबिक इंतजार कर रहे थे कि उसी दिन दोपहर के वक्त सख्त धूप और गर्मी की तपिश बर्दाश्त न हुई। सब लोग अपने घरों में दाखिल हो गए, लेकिन सच तो यह है कि उनके जिस्म घर में थे मगर दिल अल्लाह की नबी की राह देख रहे थे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ आमीन मुहतरम मेहमानान, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस अजीम लम्हे में जब ईमान वालों ने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। ये वाक़या है गज़वा बदर का, जो 17 रमज़ान मुबारक हिजरत के जैसे पेश आया। देखिए, यह है बदर की वादी जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर रखे। देखिए, सिर्फ 313 जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मौजूद है। दूसरी तरफ कुरैश के लश्कर 1000 जंगजू, 100 घोड़सवार, दर्जनों उड़े तैयारी मौजूद थे। कुरैश ने ऊंची जमीन पर कब्जा कर लिया था, जबकि मुसलमान मैदान की निचली में। सोचिए, ईमान वालों की 313 एक मुख्तसर जमात 1000 कुफ्फार के लश्कर पर गले लगी। देखिए, एक खुदासी तलवारों से नहीं बल्कि ईमान, यकीन, सब अल्लाह के वादे से हासिल हुई। अल्लाह ताला हमें भी सहाबा बदर के जैसा ईमान और यकीन नसीब फरमाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है वो तारीखी वाक़या जिसे हम ग़ज़वा उहद के नाम से जानते हैं। ये वाक़या बहादुरी, कुर्बानी और इताअत का एक ऐसा सबक याद दिलाता है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना किस कदर जरूरी है। आइए इस मॉडल पर गौर कीजिए और इस अजीम दिन के मंजर को एक एक करके देखते हैं। बदर की जंग में जब कुरैश के 70 बड़े सरदार मारे गए तो मक्का के लोग इंतकाम की आग में जलने लगे। 1 साल बाद उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार की और मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े ताकि अपनी शिकस्त का बदला ले सके और मुसलमानों को खत्म कर सके। ये देखिए, ये है जब्बल उहद, एक बुलंद और मजबूत पहाड़ जो मुसलमानों को कुदरती दीवार बनकर खड़ा था। ये छोटा सा टेला जो आप देख रहे हैं जबले रहमत की तरफ इशारा है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में तैनात किया और सख्ती से हुक्म दिया, अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हम पता नजर आया है शिकस्त। इस अफरा तफरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए, दंदने मुबारक शहीद हो गए और 70 शहीद इकराम रजी अल्लाह ताला की राह में जंगे शहादत नोश की। ये मुसलमानों के लिए सख्त आज़माइश का वक्त था। ग़ज़वा उहद हमें यह सबक देता है कि इताअत सब्र के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। ये शोहदा अपने जाने कुर्बान करके भी यही पैगाम देते हैं कि यही ईमान पर डटे रहो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी दीन के लिए साबित कदम रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद मोहतरम मेहमान, आइए आज हम चलते हैं उस अजीम मौके की तरफ जब मदीना मुनव्वरा के ईमान वाले जानदार सहाबा करम रज़ियल्लाहु ने अपने ईमान सबब इत्तेहाद की इसी मिसाल कायम जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यह है गज़वाए खंदक की दास्तान। आइए इस मॉडल को गौर से देखिए। यह है मदीना मुनव्वरा। उस वक्त मुसलमान और कुछ यहूदी कबाइल एक साथ रहते थे, लेकिन जब इस्लाम की रोशनी तेजी से फैलने लगी तो दिलों में हसद ने जगह बनाई। ये कबाइल मोहरे तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ साजिश में लगे। देखिए ये वो वक्त है जब ये कबाइल कुरैश और गतफन के बड़े बड़े सरदारों को मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर इकट्ठा कर लेते हैं। पूरे अरब से 24,000 का लश्कर मदीने को मिटाने और इस्लाम को खत्म करने के इरादे से जमा हो जाता है। दुश्मन के कदम मदीने की तरफ बढ़ते हैं और फिजा में खौफ का साया छा जाता है। ये मंजर गौर से देखिए। मदीना तीनों तरफ से कुदरती रुकावटों में घिरा हुआ है। मगरिब की तरफ जबल सला की बुलंदी पहाड़ी दीवार थी। मशरिक की सिमत थराद कहलाने वाली सियाह नोकीली चट्टानें थी। एक जानिब खजूर के बागात और मकानात की कतारें कुदरती हिसार में बनी हुई थी, लेकिन ये हिस्सा बिल्कुल खाली और गैर महफूज था। इस नाजुक घड़ी में दूर अंदेश सहाबी हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ने एक शानदार तजवीज़ पेश की। कुल्ली सिमत में एक गहरी खंदक खोद दी जाएगी ताकि दुश्मन का गुजरना नामुमकिन हो जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंसूबे की मंजूरी दी और 3,000 सहाबा के साथ सिर्फ 20 दिन में खंदक को मुकम्मल कर दिया। जब दुश्मन मदीना पहुंचे और खंदक को देखा तो हैरान रहे। अरब की जंगी तारीख में ऐसा तरीका पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। वो खंदक पार कर ना सके, इसलिए उन्होंने मदीने का 1 महीना तक मुहसरा कर दिया। भूख, सर्दी और थकान के बावजूद मुसलमानों का ईमान कमजोर नहीं हुआ। उनके दिलों में अल्लाह की जात का यकीन था। फिर अल्लाह ताला की नुसरत आ गई। 1 महीने के कठिन मुहसरे के बाद अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और सर्द, तेज और तूफानी हवा चलाई। जरा इधर देखिए, दुश्मन के खीमे उखड़ गए, आग बुझ गई। उनके दिलों में खौफ पैदा हो गया। वो मैदानी जंग छोड़कर भागे। ये मॉडल में हमें ईमान, हिकमत और इत्तेहाद का सबक देता है। मुसलमानों की तादाद कम थी, मगर उनका यकीन, सब्र और अल्लाह पर एतमाद मजबूत था और फिर अल्लाह की मदद ने उन्हें सरखुर कर दिया। ये अल्लाह हमें भी वही सब्र और इत्तेहाद अता फरमाए जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिखाई। जज़ाकल्लाहु खैर के इस तरीके के आप में इस सुनहरे बात के साथ ये लम्हे गुजारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़बीउल्लाह उमर है। मेरे टॉपिक का नाम आबे ज़मज़म की फजीलत। आबे ज़मज़म वो पानी है जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईमान और यकीन के बदले अल्लाह ताला ने इनाम अता फरमाया। ये एक ऐसा मौजूदा है जो सबसे आला और पूरी दुनिया तक बाकी रहने वाला है। आबे ज़मज़म दुनिया के पानियों में से अफजल पानी है और तमाम पानियों का सरदार है। इंसानी अक्ल हैरान है कि मक्के की सख्त तरीन गर्मी के बावजूद एक कुआं तकरीबन 5,000 साल से आज तक कभी नहीं सूखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म का पानी जिस मकसद और नियत से पिए जाए अल्लाह ताला वो पूरा फरमा देते हैं। भूखा शख्स खाने की नियत से पिए तो भूख मिट जाएगी। बीमार शिफा के नियत से पिए तो शिफा हासिल होगी। गरीब रिज़्क़ के हलाल की नियत से पिए तो माल और दौलत से नवाजा जाएगा। लिहाजा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी ज़मज़म पिए तो मेरे लिए और आप अपने लिए दुआ करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैतून मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं वो जैतून है। जैतून एक बहुत ही बाबरकत और अजीम दरख्त से निकला हुआ एक फल है। इसकी इफादियत और अहमियत को देखते हुए कई मर्तबा कुरान मजीद और हदीस मुबारक में इसका जिक्र किया है, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त को कुरान मजीद में सजर मुबारक यानी बाबरकत और मोहतरम दरख्त करार दिया है। और सूरह 3 में दरख्त की कसम खाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की। और तकरीबन 7 मर्तबा कुरान मजीद में इसका जिक्र आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम जैतून खाओ और उसका तेल इस्तेमाल करो, इसीलिए कि वो एक बाबरकत और मुबारक दरख्त से निकला हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत की जिंदगी अता फरमाए। आमीन। इनकी फजीलत और सूरह 3 में दरख्त की कसम खाते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते वत्तीनी वज़ैतून, कसम है इंजीर की और जैतून की। और तकरीबन 7 मर्तबा कुरान मजीद में इसका जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम जैतून खाओ और उसका तेल इस्तेमाल करो, इसीलिए कि वो एक बाबरकत और मुबारक दरख्त से निकला हुआ फल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत की जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद नबूवत का मॉडल है। यहाँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मस्जिद मुकम्मल करने की सोचा था, फिर तो पूरा नहीं हुआ, आधा उतना ही हुआ था। और ये असहाबे सुफ़ा है, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बनने का मदरसा, और इस्लाम और मदीना में का पहला मस्जिद कुबा यानी मस्जिद नबवी। तो आप सबसे इंशाल्लाह आप नेक्स्ट मॉडल पर आप देख सकते हो कि पूरा मस्जिद बने सो है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीन मोहतरम हजरात, हमारी सीरत का दूसरा हिस्सा। यहाँ आप सब लोग मस्जिद नबवी का मॉडल देख रहे हैं। शुरू में मुसलमान बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन इनके दिलों में खाने काबा की तरफ बेपनाह मोहब्बत रहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ निगाह उठाकर अल्लाह ताला की तरफ से वही का इंतजार फरमाते। मदीने के कुछ यहूदी मुसलमानों का मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम्हारा दिन सच्चा है तो फिर अपने घर यानी काबा की तरफ क्यों नहीं रुक करते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर में मस्जिद नबवी की तोसी, ये हिस्सा मस्जिद नबवी के इस मॉडल को जाहिर करता है जो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला के दौर में तोसी की बात के हालात को पेश करता है। यह तोसी इस वक्त की गई जब मदीना मुनव्वरा की आबादी बढ़ गई और ज्यादा नमाजी मस्जिद में आने लगे। हिजरत के 29वें साल तक मस्जिद मुसलमानों की बढ़ती हुई जमात के लिए छोटी पड़ गई। इस जरूरत को महसूस करते हुए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद की तोसी का फैसला फरमाया। करीब के लोग अपनी जमीन को फरोख्त करने या अल्लाह की राह में वक्फ करने के लिए तैयार हो गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जमीन खरीदी और बेमिसाल सखावत का मुजाहिरा किया। आप खुद तामीर की निगरानी फरमाते रहे ताकि काम मुकम्मल तवज्जो और एहतियात से हो। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की क़ियादत के मस्जिद में तमाम अतराफ में तकरीबन 5 मीटर यानी 16 फीट का इजाफा किया गया। इस तोसी के बाद मस्जिद की लंबाई शुमाल से जुनूब तक तकरीबन 81 मीटर 266 फीट होगी और चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक 63 मीटर 207 फीट होगी। दीवारों को तरा सीधा पत्थरों और मजबूत चूने से तामीर किया गया जिन्हें लोहे और शीशे से जमाया गया। छत सागवान की मजबूत और खूबसूरत लकड़ी से बनाई गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को एक महफूज मेंबर का हिस्सा भी तामीर करवाया। इसमें खिड़कियां लगाई गई ताकि नमाजी इमाम को आसानी देख सके और नमाज के दौरान नज़्म व वक़्र कायम रहे। यह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाने में मस्जिद नबवी की तोसी। अगला तोसी आपको नेक्स्ट मॉडल में दिखाया जाएगा। आप इस वक्त मस्जिद नबवी का मॉडल देख रहे हैं जो खलीफा अली बिन अब्दुल मलिक के दौर में की जाने वाली तोसी के बाद की शाह को जाहिर करता है। इस अजीम तोसी ने मस्जिद को ज्यादा वाज़ेह और शानदार इबादत गाह में बदल दिया। सन 28 ईस्वी से 91 हिजरी 706 ईस्वी से 710 ईस्वी के दरमियान ये मस्जिद बनाई गई। यहाँ हर तरफ हर कोने में एक एक मीनार बनाए गए ताकि अजान दे सके और नमाजियों को बुलाया जा सके। ये मीनार कई के बारे में बनाया गया तो अजान दे सके और नमाजी को नमाज को बुलाया जा सके। इस मस्जिद नबी में 20 दराजे बनाए जा सके। 20 दराजे बनाए, 8 दराजे मस्जिद से मशरिकी शिर्क में, 8 दराजे मगरिबी शिर्क में। ये रमजान के महीने में यहाँ चिराग लगाते थे। ये मीनार के ऊपर चिराग को लगाया जाता था। एक चिराग के वहीं पर छोड़ दिया जाने से एक चिराग पढ़कर पूरा ये चलकर राख हो चुका था। फिर बाद में ये कब हुआ 650 की 4 के ईस्वी में हो चुका था। आप नेक्स्ट मॉडल में आप देख सकते हैं नई मस्जिद बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमानान, मेरा नाम राशिदा कागदगार है। मैं पंचम जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरा मजमून है खैबर के बाद मस्जिद नबवी की तोसी। ये मस्जिद नबवी का मॉडल है जो खैबर के जंग के बाद की पहली तोसी को जाहिर करता है। इस वक्त इस्लाम तेजी से फैल रहा था और मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन ज्यादा हो रही थी। मस्जिद को सबको खुश आमदीद कहने के लिए मस्जिद जगह की जरूरत थी। हिजरत के 7वें साल मस्जिद तंग हो गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लोगों से पूछा कि कौन करीबी जमीन खरीद कर अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए वक्फ करेगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबा में से थे, उन्होंने 10,000 दिरहम एवज़ जमीन खरीदी और अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। इस अजीम कुर्बानी के बदौलत मस्जिद को बड़ा किया जा सका। यह मॉडल हमें याद दिलाता है कि ईमान, इत्तेहाद और मेहरबानी किसी भी जगह को खास बना सकती है। मस्जिद नबवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम की मेहनत से बड़ी और आज भी इस्लाम की मुक़द्दस तरीन जगहों में शामिल है। शुक्रिया।
पहले उस्मानियों ने हुक्मरान जिन्होंने मस्जिद नबी की मरम्मत और तोसी के और सुल्तान सुलेमान अल कानूनी थे। 940 हिजरी में इन्होंने मस्जिद की मीनारों पर लगे मुख्तलिफ हिलालों को हटाकर एक ही हिलाल लगाया जो तांबे को था और इस पर सोने की परवा छोड़ी हुई थी जो अच्छी थी और खूबसूरत की अलामत थी। 947 हिजरी में इन्होंने मस्जिद के शुमाली हिस्से में बाबुल रहीम और बाबुल नजा जैसे नए दरवाजे भी तामीर किए गए। इस तोसी के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मानियों का मोहब्बत को और जाहिर करने के लिए एक बड़ी तोसी की तामीर की गई जो तकरीबन 13 साल जारी रही। इस अज़म मनसूबे में तकरीबन 140 सोने के तेले इस्तेमाल हुए और मस्जिद मुख्तलिफ फिलहालों को एक साथ और जाहिर करा गया और इस अज़म मनसूबे में तकरीबन 140 सोने के तेले जाहिर हुए और इस मस्जिद के अंदर मदरसा भी कायम किया गया ताकि तलबा और कुरान मस्जिद सीख सके। इस मस्जिद के अंदर कुरान आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को खूबसूरती से कताती में मुज़य्यन किया गया और उस्मानियों को हकमरन मस्जिद नबवी की गहरी अकीदत और खूबसूरती को रहमतुल्लाहि बरकातुहू। खुश मस्जिद है मोहतरम मेहमानों, हमारे नुमाइश के इस हिस्से में जो उस्मानी खिलाफत के दौर को जाहिर करता है 933 हिजरी में उमाशी खिलाफत के दौर को जाहिर करता है। 933 हिजरी के बाद मस्जिद नबी के देखभाल, इंतजाम और तोसी के मुकम्मल जिम्मेदार संभाली थी। उस्मानियों ने हुक्मरान जिन्होंने मस्जिद नबी की मरम्मत और तोसी के वो सुल्तान सुलेमान अल कानूनी थे। 940 हिजरी में इन्होंने मस्जिद की मीनारों पर लगे मुख्तलिफ हिलालों को हटाकर एक ही हिलाल लगाया जो तांबे को था और इस पर सोने की परवा छोड़ी हुई थी जो अच्छी थी और खूबसूरत की अलामत थी। 947 हिजरी में इन्होंने मस्जिद के शुमाली हिस्से में बाबुल रहीम और बाबुल नशा जैसे नए दरवाजे भी तामीर किए गए। 976 हिजरी 1563 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल मजीद के अव्वल दौर में मस्जिद नबी की एक बड़ी तोसी की गया जो तकरीबन 13 साल जा रही रहा। मगरिब दुआ जैसे बाबू रहीम खान मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर किए गए। मस्जिद की छत को 117 गुंबदों से मुज़य्यन किया गया जिन्हें रंगे शीशों से सजाया गया जो सूरज के रोशनी खूबसूरत चमकते थे। इस तोसी के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे मुबारक के ऊपर का गुंबद भी दोबारा तामीर किए गए और छोटा खूबसूरत गुंबदों से मुज़य्यन किया गया। इनमें सबसे नुमाया सबसे गुंबद अज़रा है जो आज भी गुंबद जो हरा गुंबद के नाम से जाना जाता है दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों को इसके एहतराम से भर देता है। मस्जिद की दीवारों को कुरान आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से खूबसूरत खताते वह मुज़य्यन किया गया। मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी कायम किया है ताकि तलबा कुरान मजीद सीख सके। इस अजीम मंसूब में 140 थैले सोने के इस्तेमाल हुए जो उस्मानियों ने हुक्मरान मस्जिद नबवी की गहरी अक़दत और मोहब्बत को जाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मोहतरम मेहमानों, हमारे नुमाइश के इस हिस्से में जो मौजूदा दौर मस्जिद नबी के हुस्न को जाहिर करता है। ये मॉडल आपको दिखाता है कि वक्त के साथ ये अजीम मस्जिद किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत इमारत गाहों में से एक बन गई। आज मस्जिद नबी में 10 बड़े दरवाजे हैं, हर एक का वजन 2500 किलोग्राम है और इसके अलावा 100 दीगर दरवाजे भी बनाए गए हैं ताकि आमद और रफ्त आसान है। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम रोज़ा मुतहरा है। इसके नीचे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक आरामगाह है और उसके करीब ही रियाजुल जन्नत है जो जमीन पर दुनिया का एक जन्नत का एक बाग है। अल्लाह ताला हम सबको इस मस्जिद की जियारत अता फरमाए और रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप सबको इस खास हिस्से में खुशामदीद। यहाँ आप हुजराए आयशा रज़ियल्लाहु का मॉडल देख रहे हैं, बाबरकत कमरा जहाँ पर हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, इबादत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आराम फरमाए। अभी देखो मैं क्या बोली, हुजरा निहायत करको बोली। हुजरा निहायत बोले तो क्या जी, हुजरा निहायत क्या बोल को मुझे पूछना है तुम्हें सवाल। हाँ मैं हज बोलते बता रहा हूँ, तुम्हें सुन रहे। हुजरा निहायत बोले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी, आपकी ज़ौजा, उनकी बीवी अम्मा आयशा तआला जो जिस कमरे में रहते थे उसे क्या बोलते हैं, हुजरा निहायत करको बोलते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी साथी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे आयशा अम्मा आयशा के बाप भी और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी करीबी दोस्त भी उनके। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खली क्या उनके करीबी साथी। हाँ अभी देखो तुम लोग इसे ये है नहीं, ये देख रहे नहीं, ये तो का कब्र, ये तीन है क्या, ये इनके कब्र मुबारक है। यहाँ पर आयशा तआला तुम लोग को समझाने का असर इतना बड़ा करेंगे डिवाइडेड कर को। इसे क्या बोलते बोले तो मदीने में रियाजुल जन्नत के नाम से जाना जाता है जगह, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के बागों में से एक बाग है करको बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह को। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी बसर कर रहे थे अम्मा आयशा के साथ, तब अम्मा आयशा क्या नहीं करते थे, पर्दा इख्तियार नहीं करते थे ना, पर्दा इख्तियार बोलते ना, पर्दा नहीं करते थे। जब ये जो देख रहे देखो ये कब्र मुबारक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है।
तभी उन्होंने क्या नहीं करे, पर्दा इख्तियार नहीं करे, उनके शोहर नहीं है ना, उसके साथ क्या नहीं करे, तभी भी पर्दा नहीं करे। याद है कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक कर रही है, अबू बकर उनकी कब्र मुबारक, तब उन्हें क्या, अबू बकर उनकी कब्र मुबारक, तभी उन्होंने भी क्या करे, तभी उन्होंने पर्दा इख्तियार न करे। ये है नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और अबू बकर उनकी कब्र मुबारक और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक, तब भी क्यों करे वो कब्र मुबारक? तो एक बार तो ना उमर रज़ियल्लाहु ताला ना महरूम होते, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी होते, लेकिन उन्होंने हमारे सल्लल्लाहु को क्या नहीं रखते, इसलिए क्या करे, पर्दा इख्तियार करे ताकि इन हुजरों में से आखिर बाकी रखा जा सके। तो भाई सादा सा कमरा है, तो इसे क्या मिला, सबसे बड़ा शर्फ हासिल मिला है, सही था रे तभी, हां सबसे बड़ा शर्फ हासिल हुआ। ये सादा सा कमरा में याद रहता था, असल अजमत और दौलत या शान और शौकत में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने में है। जब आप मॉडल पर गौर करें तो ये याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मोहब्बत, सादगी और इबादत से भरी हुई थी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आगे का जो अभी फिलहाल क्या है वो कमान का वो मॉडल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने गुंबद खिज़रा का मॉडल रखे हैं। ये मुसलमानों की दुनिया का एक मुकद्दस और महबूब मिशन है। इस मुबारक हिजरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक यहाँ पर मौजूद है। पहले के दौर में मदीना मुनव्वरा को लकड़ी से बनाया गया था, बाद में इसे शीशे से ढका गया, बाद में मदीना मुनव्वरा को सफेद रंग दिया गया, बाद पीला और नीला, आखिरकार मदीना मुनव्वरा को सद रंग इख्तियार किया गया। मौजूदा दौर की मस्जिद नबी आप वहाँ देख चुके होंगे, जिसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें मुबारक यहाँ पर मौजूद है। ये पूरी जगह उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे मुकद्दस मकामात में से एक है। अल्लाह हमें बार बार इस मुकद्दस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए और हमें कसरत से दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक दे।